श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 6। इसका परपट पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ जो है इसका इंग्लिश में कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। Who would like to read? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु एक मिनट, शेयर नहीं है स्क्रीन। एक मिनट। Avyabhicharani bhakti means unalloyed devotion. A person हाँ जी engaged प्रभु। in devotional service must be free from material motives. In this Krishna conscious movement, one's consciousness must be changed. If consciousness is aimed towards material enjoyment, it is material consciousness. And if it is aimed towards serving Krishna, it is Krishna consciousness. A surrendered soul serves Krishna without material considerations. Anya bilashita shunyam, jnana karmadi anavritam. Unalloyed devotional service which is transcendental to the activities of the body and mind, such as jnana, mental speculation, and karma fruitive work, is called pure bhakti yoga. Bhakti yoga is the proper activity of the soul, and when one actually engages in unalloyed, uncontaminated devotional service, he is already liberated for gunan samatyathyana. Krishna's devotee is not subjected to material condition, even though his bodily features may appear materially conditioned. One should therefore not see a pure devotee from the materialistic point of view. Unless one is actually a devotee, he cannot see another devotee perfectly. As explained in the previous verse, there are three types of devotees: Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttam Adhikari. The Kanishta Adhikari cannot distinguish between a devotee and a non-devotee. He is simply concerned with worshipping the deity in the temple. A Madhyam Adhikari, however, can distinguish between the devotee and non-devotee, as well as between the devotee and the Lord. Thus, he treats the Supreme Personality of Godhead, the devotee and the non-devotee, in different ways. No one should criticize the bodily defects of pure devotee. If there are such defects, they should be overlooked. What should be taken into account is spiritual master's main business, which is devotional service, pure service to the Supreme Lord, as stated in Bhagavad Gita. What is stated in Bhagavad Gita? Api cheda sadurachara bhajate mam ananyabha sadhu ev mantavyo samyak vyastita hi saha. Even if a devotee sometimes seems to engage in abnormal activities, he should be considered a sadhu, a saintly person, because his actual identity is that of one engaged in having the service of the Lord. In other words, he is not considered as ordinary human being. Even though a pure devotee may not be born in a Brahmana or Goswami family, if he is engaged in a service of the Lord, he should not be neglected. In actuality, there cannot be a family of Goswamis based on material consideration of caste and heredity. The Goswami title is actually the monopoly of the pure devotees. Thus, we speak of 6 Goswamis headed by Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Rupa Goswami and Sanatana Goswami had practically become Mohammedans and had therefore changed their names to Dabira Khas and Sakara Khas, Sakara Malika. But Sri Chaitanya Mahaprabhu himself made them Goswamis. Therefore, the Goswami's title is not hereditary. The word Goswami refers to one who can control the senses
who is master of the senses. A devotee is not controlled by the senses, but is the controller of the senses. Consequently, he should be called Goswami, Swami or Goswami, even though he may not be born in a Goswami family. According to this formula, the Goswamis who are descendants of Sri Nityanand Prabhu and Sri Advaita Prabhu are certainly devotees, but devotees coming from the family should not be discriminated against. Indeed, whether the devotees come from the family of previous acharyas or from an ordinary family, they should be treated equally. One should not think, oh, here is an American Goswami, and discriminate against him. Nor should one think, here is a Nityanand Vansha Goswami. There is an undercurrent of protest against our awarding of the title to the American Vaishnavas of Krishna consciousness movement. Sometimes people flatly tell the American devotees that their sannyasa or title of Goswami is not bona fide. However, according to statements of Sri Rupa Goswami in his verse, an American Goswami and a Goswami in a family of the acharyas is non-different. On the other hand, a devotee who has attained the title of a Goswami but is not born of Brahmana father or a Goswami in the family of Nityananda or Advaita Prabhu should not be artificially puffed up by thinking that he has become a Goswami. He should always remember that as soon as he becomes materially puffed up, he immediately falls down. This Krishna consciousness movement is transcendental service, and here is no room for jealousy. The movement is meant for Paramhansas who are completely free from all jealousy. Paramam Dharmata Saranam. One should not be jealous whether he is born in a family of Goswamis or has a title of Goswami awarded to him. As soon as anyone becomes envious, he falls down from the platform of Paramahansa. If we consider the bodily defects of a Vaishnava, we should understand that we are committing an offense at the lotus feet of the Vaishnava. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is very serious. Indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has described this offense in Hatimata, the mad elephant offense. A mad elephant can create a disaster, especially when he enters into the nicely trimmed garden. One should therefore be very careful and not to commit any offense against a Vaishnava. Every devotee should be ready to take instructions from a superior Vaishnava, and a superior Vaishnava must be ready to help an inferior Vaishnava in all respects. One is superior or inferior according to his spiritual development in Krishna consciousness. One is forbidden to observe the activities of a pure Vaishnava from a material point of view. For the neophyte, especially considering a pure devotee from a material point of view is very injurious. One should therefore avoid observing a pure devotee externally, but should try to see the internal features and understand how he is engaged in the transcendental loving service of the God. In this way, one can avoid seeing the pure devotee from the material point of view, and thus one can gradually become a purified devotee himself. Those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees, or a certain tract of land can generally prone to see the external features of the devotee. Such neophytes, unable to appreciate the exalted service of the advanced devotee, try to bring the Mahabhagavata into their platform. We experience such difficulty in propagating Krishna consciousness all over the world. Unfortunately, we are surrounded by a neophyte godmothers who do not appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness all over the world. They simply try to bring us to their platform, and they try to criticize us in every aspect. We very much regret their naive activities and poor fund of knowledge. An empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread Krishna consciousness movement all over the world. When one thus criticizes the pure devotee, he commits an offense, Vaishnava Aparadha, that is very
obstructive and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness. A person cannot derive any spiritual benefit when he offends the lotus feet of a Vaishnava. Everything should therefore be very careful not to jealous of an empowered Vaishnava or a Shuddha Vaishnava. It is also an offense to consider an empowered Vaishnava an object of the disciplinary action. It is offensive to try to give him advice or to correct him. One can distinguish between a neophyte Vaishnava and an advanced Vaishnava by their activities. The advanced Vaishnava is always situated as the spiritual master, and the neophyte is always considered his disciple. The spiritual master must not be subjected to the advice of disciple, nor should a spiritual master be obliged to take instructions from those who are not his disciples. This is the sum and substance of Sri Rupa Goswami's advice in the 6th verse. This was the English version. Now we will read the Hindi part of it. अव्याभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो ये भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो ये आध्यात्मिक चेतना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू, भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में फर्क निकालना है। भक्त को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसकी अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती। एक ही अभिलाषा है भगवान कृष्ण की सेवा करने की, और ज्ञान प्राप्त करता है तो कर्म करता है इसके लिए, भगवान के लिए। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान तथा कर्म से परे है। ज्ञान प्राप्त कर लिया वो साधन है, पीछे रह गया। कर्म करने हैं, समझ गए कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, अकर्म अब भगवान के लिए करना है। तो अनन्य भक्ति जो है इन सबसे परे है और वे शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता, और जब कोई अनन्य शुद्ध भक्ति में संलग्न रहता है तो पहले से ही मुक्त रहता है। ये हमने बात जीवन मुक्त की कर ली है पहले से। सगुणा समित ज्ञान, कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दिशा से बनता नहीं, भले ही शरीर से या भौतिक रूप से बद्ध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टि से न देखे, तो भक्ति की दृष्टि से देखे। वास्तव में जब तक कोई भक्त नहीं होता या दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाते। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अब कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताया जा रहा है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा भक्त में अंतर नहीं कर पाता, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि भक्त है कि अभक्त है। उसे तो मंदिर में केवल अर्चना पूजन से प्रयोजन रहता है। मंदिर में जाएगा, भगवान की अर्चना करेगा, भगवान का पूजन करेगा। किंतु जो मध्यम अधिकारी है, जो उससे ऊपर की कंडीशन में है, वह शुद्ध भक्त और अभक्त में, और भक्त और भगवान में अंतर कर सकता है। He understands these differences. इस तरह वह भगवान, भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। Then his behavior varies. उनका व्यवहार जो है इन सब के साथ अलग अलग हो जाता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो तो भी उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा है। उसे ध्यान देना है शुद्ध भक्ति की ओर, ना कि उसके अंग प्रत्यंग की ओर, जो गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा भगवद गीता 9:30 में कहा गया है, अपि चेत् सुदोचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई भक्त घृणित कर्म भी करे तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो ये है
कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। अब उसने गलत कार्य कर दिया, अपराध कर दिया, मिस्टेक कर दी, तो उसको आप जो है साधु समझे। ये भगवान का आदेश है। कंडीशन अप्लाई, और कंडीशन ये है कि वो भक्ति में लगातार लगा हुआ है। इसी अध्याय के फिर अगले श्लोक सही है ना तू? बच्चों ने आना शीघ्रम पतला मत भवति पतला लग रहा है। ब्रह्मणः शाश्वतम इसमें बढ़िया शांतिं नहीं है। गच्छति। फिर कौन गंदा कर दिया गति आपने। जानहि न मैं भक्त नश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब शुद्ध भक्त के बारे में चर्चा आ रही है। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर गोस्वामी परिवार को आधारित नहीं होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसका क्राइटेरिया है शुद्ध भक्ति। ये भौतिक पद है, भौतिक प्रतिष्ठा है, भौतिक उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मा कि नहीं जन्मा, गोस्वामी परिवार में जन्मा कि नहीं जन्मा, ये क्राइटेरिया नहीं है। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी तो एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे। अतः उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकर मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी बनाया है। अतः गोस्वामी उपाधि वंशगत नहीं है, ये परिवार में नहीं आती है, ये वंशगत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके। इंद्र निग्रह होना चाहिए, इंद्रियां कंट्रोल होनी चाहिए, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वे गोस्वामी परिवार में न उत्पन्न हुआ हो। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यत्ता ही अपनी पंक्तये पुरुषस्य उत्कृष्टता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवमानि। इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवती हैं, विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो गोस्वामी जो होता है वो इनको वश में कर लेता है, उसका मन वश में हो जाता है, मन विचलित नहीं होता है, तो इंद्रियों का संबंध इंद्रिय विषयों से कट जाता है, बिल्कुल एकदम कट ऑफ हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो ओवरऑल गोस्वामियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि वो ये अमरीकी गोस्वामी है उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ना ही ये सोचना चाहिए कि वे नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमरीकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। पीपल आर अपोजिंग कि अमेरिकन को आपने डीटी वर्शिप कैसे लगा दिया, अमेरिकन को गोस्वामी कैसे बना दिया, अमेरिकन को सन्यासी कैसे बना दिया, अमेरिकन के हाथ में डंडा कैसे पकड़ा दिया। कभी कभी लोग तपाक से अमेरिकी भक्तों से कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी विधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्री गोस्वामी के श्लोक के अनुसार अमरीकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई है, यदि उसके पिता ब्राह्मण नहीं है या वह नित्यानंद अद्वैत प्रभु गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसे यह सोचकर छोटे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। गोस्वामी को भी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तो गोस्वामी परिवार से आया नहीं, मैं तो साधारण परिवार से था और मेरे को गोस्वामी बना दिया। उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक सृष्टि से गर्वित हो उठेगा उसका पतन हो जाता है। हमने गोस्वामियों का पतन होते हुए देखा। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है।
इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। यह आंदोलन उन परम हंसों के लिए है जो समस्त देश द्वेष से रहित है। पर आप तो परमहंस है नहीं, पर आप भी आंदोलन के पार्ट है, यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। तो कंडीशन क्या हुई कि द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष आपके अंदर जो भगवद गीता के अंदर बताए गए हैं, मन को कैसे वश में करना है, बुद्धि कैसे स्थिर करनी है, शांति कैसे प्राप्त करनी है और भगवान की सेवा कैसे करनी है, उन सब मार्गों पे आप चलते हैं तो आप ये समझिएगा कि आप कृष्ण महामार्ग आंदोलन के पार्ट एंड पार्सल हैं, कि सिर्फ गोस्वामी के लिए नहीं। ये आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेष से रहित। पर आप द्वेष से रहित होकर भी परमहंस नहीं हो सकते। परमहंस की स्थिति और है, डिफरेंट है। मनुष्य को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वो परमहंस के पद से गिर जाता है। ईर्ष्या करते ही इज नॉट ए परमहंस। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश करता है। विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह की सहायता करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार कोई भी किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होता। नोबडी इज श्रेष्ठ एंड नोबडी इज निकृष्ट। वो हर एक का अपना अपना लेवल है, उस लेवल के अनुसार चलते हैं। एक छोटी सी बात अपराध के बारे में बता देता हूँ। अपराधात अर्थात अपराधता अपराधता, टू बी डिस्टेंस फ्रॉम वर्शिप। अपराध का अर्थ होता है टू बी डिस्टेंस फ्रॉम वर्शिप। आप भक्ति पूजा से दूर हो जाते हो तो वो अपराध कहलाता है। तो offenses as the lotus feet of devotees distances us from worship and devotional service to the supreme Lord. जब हम जो है किसी भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो वो हमें जो है भक्ति से दूर ले जाता है। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित। दृष्टि आध्यात्मिक होनी चाहिए। ये भक्ति कितना एडवांस है, मैं इससे क्या लर्न कर सकता हूँ, मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ। ईर्ष्या और द्वेष रहित होकर ये नहीं सोचना है भौतिक एंगल से कि कितना क्या है, कैसा नहीं है, तो भौतिक दृष्टि नहीं रखनी है। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतः शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए। ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है, सर्विस कैसे कर रहा है। मेरे को भी उसके पद चिन्हों पर चल के वैसी सर्विस सीखनी है और करनी है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है। इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी वर्ग के लोगों, किसी वर्ग के भक्तों या किसी भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वही सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी हैं। बाहरी देखने में भक्त कैसा दिखाई दे रहा है उसको देखने के आदी। एक भक्त जो है ऑफिस जाता है तो पैंट कमीज पहनता है, ये भक्त नहीं, धोती कुर्ता पहनना चाहिए हर वक्त। ऑफिस जाए तो भी धोती कुर्ता पहनना चाहिए। अरे भाई, वहाँ का ड्रेस कोड है, उसे इनकम करनी है, घर चलाना है, घर की व्यवस्था करनी है, भक्ति तो कर रहा है,
जो भक्ति के नियम है उनका पालन कर रहा है, पर वैष्णव ड्रेस पहन के ऑफिस नहीं जा सकता। अरे ये तो उसने बाल कटाए नहीं, ये तो गंजा हुआ नहीं, छुट्टियां रखी नहीं। अरे भाई, बाल नहीं कटाए हैं तो उसकी ऑफिस के लिए जो कंपल्शन है उनको पूरा करना उसका ड्यूटी है। यू कैन नॉट इग्नोर देम कि वो भक्त है इसलिए बाल कटवा ले, भक्त है इसलिए गंजा हो जाए, भक्त है वो इसलिए धोती कुर्ता पहन के जाए। इन बातों को, भाई भारी लक्षणों को देखने के प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे नव दीक्षित भक्त उच्च भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझने के कारण मां भागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने की असाधारण कार्य की महत्ता को नहीं समझ सकते। ये प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु भाइयों के बारे में कह रहे हैं। हम सबों को अपने स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं। हमें उनके इन दुष्ट कार्यों एवं अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न पुरुष को भगवान की गोपनीय सेवा में संलग्न है उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रकट न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शंस लगते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर प्रचारक का कार्य है प्रचार करना, वो प्रचार करता है ऑब्जेक्शंस लगने के बावजूद। ये अलग बात है कि प्रचार में जो वो देना चाहता है वो पूरा नहीं दे पाता, वो अलग बात है, पर फिर भी वो करता है। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है। वैष्णव अपराध जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक है। जो व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। वह शक्ति संपन्न वैष्णव है और शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इस तरह वह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करना अपराधपूर्ण है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर होना चाहिए। एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना एडवांस्ड है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद में होता है और नव दीक्षित भक्त सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में रूप गोस्वामी का यही कथन है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भगवद गीता के चौथे अध्याय में कहा गया है जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। मतलब शिष्य की योग्यता बताएंगे कि आप भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं या अधिकारी नहीं हैं। ये योग्यता आपको बताई जा रही है कि आपकी पोजीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1 कि आप दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवान कृष्ण दे रहे हैं उसके प्रति आप समर्पित हैं। इफ किंतु लट लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज। और दूसरा, आपने इंद्रियों को वश में कर दिया, इंद्रिय निग्रह, सेंस कंट्रोल, तो आपको तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। उसके बाद भगवान कहते हैं किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे ईश्वर भावनामृत को नहीं प्राप्त कर सकते। ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, अनवांटेड चैलेंजिंग क्वेरीज नहीं होनी चाहिए। अज्ञान है तो आप अनवांटेड चैलेंजिंग क्वेरीज करेंगे। और आपकी भगवान में और शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई स्थान। तो आपको
भक्ति करने के लिए जो दिया जा रहा है उसमें एक मुख्य बात निकल के आई कि आपको व्यक्ति के बाहरी स्वरूप से भेद नहीं करना चाहिए, उसको एनालाइज नहीं करना चाहिए, उसे क्रिटिसाइज नहीं। और अगर किसी से भक्ति करते हुए कोई अपराध हो जाता है तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, और भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो लगातार भक्ति में होता है, भक्ति से पीछे नहीं होता है। और इतना ही, शेष फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।